ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. رمضان گزر ہی گیا. کہہ رہے تھے کہ شروع ہو رہا ہے، اب پورا ہو رہا ہے. کئیوں کا رمضان کا آخری جمعہ ہے، کسی کا شاید زندگی کا آخری جمعہ ہو اور کسی کا شاید سال کا آخری جمعہ ہو، کہیں اگلے سال پڑھیں گے. یہ نا جمعۃ الوداع، آخری جمعہ، یہ بھی خود ہی لفظ بنایا ہوا ہے اور ہے حقیقت کے قریب. واقعی کئی لوگ سالانہ جمعہ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں آخری جمعہ، اب کب جمعہ ہوگا، دیکھیں گے جب آئے گا. ختم. اس دن، آج کے دن نمازی زیادہ ہوں گے، اگلا جمعہ بھی آئے گا، آدھے بھی نہیں رہ جائیں گے. بڑی تکلیف کی بات ہے. تو مسلمانوں، اللہ نے ہمیں یہ رمضان دیا، اس کی راتیں دی کہ میری عبادت کر لو، کھپ لو، قرآن پڑھو. اس میں رات گزری ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے. ترلے لیتے، منتیں کرتے، معافیاں مانگتے، توبہ کرتے. کیا خوبصورت راتیں، کیسے دن ہے کہ سارا دن بھوکے پیاسے تکلیف میں، مگر کہتے میرا اللہ مجھ سے راضی ہوتا. چھوٹے چھوٹے بچوں نے روزے رکھے، 85-88 سال کا بابا روزہ رکھ کے بیٹھا ہے. ان سے پوچھو کیا کہتے، کیسے چھوڑ دوں روزہ، ہمت ہی نہیں ہوتی چھوڑنے کی. مریض ہیں، شوگر والے ہیں، تکلیفوں والے ہیں، کتنے مسائل ہیں، مگر کہتے پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ نصیب ہونا کہ نہیں ہونا، رکھنے دو جیسے کیسا ہوتا ہے. بچے بوڑھے، ایک نیکی کا ماحول ہے، نیکی کی بہار ہے، ہر طرف نیکی نیکی دکھتی ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہیں. شکر ہے اللہ کا. اور پھر ہمارے گناہ معاف ہو گئے. سبحان اللہ، اللہ کا فیصلہ ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کو پایا ایمان کے ساتھ، اجر کی نیت پہ، اجر کی امید پہ، جاؤ یقین کرو کہ پچھلے گناہ معاف ہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، جس کے گناہ معاف نہ ہوئے وہ تو ہلاک ہو گیا، اس کی ناک تو مٹی میں مل گئی، وہ تو رل گیا، وہ تو رسوا ہو گیا، وہ تو برباد ہو گیا. جس کو رمضان ملا اور پھر اس کی توبہ، جس کی بخشش نہ ہوئی اس کی ہلاکت ہے، جس کی مغفرت ہوئی اس کی جنت ہے. یہ فیصلے ہیں میرے رب کے. راتوں کو کھڑے ہوتے، لمبی لمبی تراویح پڑھتے ہیں، کئی کئی پاروں کا قیام کرتے ہیں. رات کو سونے کو دل نہیں چاہتا، نیند قریب نہیں پھٹکتی. کہتا نہیں رمضان ہے، کون سا پھر موقع ملنا ہے، اور پڑھ لوں اور اللہ کو منا لوں. زندگی کا بھی وقت قریب ہے اور رمضان کی گھڑیاں بھی دور نہیں ہیں. یہ بھی ختم ہوا کہ ختم ہوا، جو فائدہ اٹھاتا اٹھا لو. میرے رب کا اعلان آیا تھا
اے خیر کی طرف بڑھنے والے اور آگے بڑھ جا، میں خیر والا ہوں، آگے بڑھو۔ میرے جو گناہ میں نے چھوڑ دیے، مجھے پیغام آیا تھا، اے گناہگار، اے شر کی طرف جانے والے، رک جا، تھم جا، بس کر، ہم گناہ نہ کری۔ تو میں نے اپنے رب کے حکم کو مانا ہے، میں نے نیکی کو بڑھایا ہے، میں نے گناہوں کو گھٹایا ہے، میں گناہ سے پیچھے آیا ہوں، میں خیر میں آگے بڑھوں۔ خوش قسمت لوگ ہیں واللہ۔ راتیں بھی یہ جو قرآن اور روزہ سفارش کریں گے نا، یہ کوالٹی ہے۔ روزہ کہے گا اے اللہ میں نے دن کو اس کو بھوکا پیاسا رکھا، اس نے اپنی خواہشات کو دبایا، میری سفارش اس کے حق میں قبول کر۔ قرآن کیا کہے گا؟ اے اللہ یہ میری وجہ سے رات کو جاگتا تھا، انٹرنیٹ کی وجہ سے نہیں، سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں، دوستوں رشتہ داروں بچوں کی وجہ سے نہیں، بازاروں دکانوں کی وجہ سے رات کو نہیں جاگا۔ یا اللہ یہ رات کو جاگا تو قرآن پڑھنے کی وجہ سے جاگا۔ اے اللہ یہ میری وجہ سے رات کو جاگتا تھا، اس کے ہاتھ میں قرآن تھا، اس کے ہاتھ میں موبائل بھی تھا تو موبائل میں قرآن تھا، اس کے موبائل میں کوئی ایپ نہیں کھلی تھی، یا اللہ موبائل کھول کے بنا قرآن ہی پڑھنا تھا۔ اے اللہ اس کے ہاتھوں میں قرآن، اس کے سینے میں قرآن، اس کے کانوں میں قرآن، اس کی زبان پہ قرآن، اس کی آنکھیں قرآن دیکھتی تھی، اس کا دماغ قرآن پہ چلتا تھا، اس کا دل قرآن سے روشن تھا۔ قرآن کہے گا یا اللہ میں راتوں کو جگاتا تھا، سفارش تو قبول کر۔ اللہ دونوں کی سفارش ماننے گا، روزے کی بات بھی مانی جائے گی، قرآن کی بات بھی مانی جائے گی، بندہ جنت۔ لیلۃ القدر جس نے پالی، رات کو قیام کیا، لیلۃ القدر گپے مار کے نہیں۔ میں تو اعتکاف والوں کو دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی اس پہ گفتگو کر رہا ہے۔ او بھائی اعتکاف والے بات نہیں کر سکتے، انہوں نے صرف اللہ سے ملاقات کرنی۔ اعتکاف میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، اعتکاف میں انفرادی اصلاح ہے۔ اعتکاف دوسروں کی اصلاح کے لیے نہیں ہے، اعتکاف ذاتی اصلاح کے لیے ہے۔ اعتکاف کا ایک مقصد ہے اپنا جائزہ لینا، تنہائی میں بیٹھنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ وہ بھی ٹولیاں بنا لیں گے، گروپ بنا لیں گے، ادھر قیام ہو رہا ہوگا، وہ پیچھے باتیں کر رہے ہیں، ابھی اوپر اترا تو موبائل لے کے بیٹھے پوری جھوٹ بنا کے، کچھ نہیں، نقصان ہو گیا۔ میں نے رمضان میں سب کی منت کی، سحری میں افطاری میں اب بھی چند دن باقی ہیں، دعا کر لیا کریں، ہم اللہ سے مانگ لیا کریں، گڑ گڑا لیا کریں۔ یہ سموسے پکوڑے دہی پراٹھے یہ زندگی میں کھائے ہیں، اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی کمی نہیں آنے دیتا۔ افطاری کے قیمتی وقت میں اس کی آوازیں نہ لگایا کریں، سموسہ دے دو، یہ کہا کریں اللہ بخشش دے دے۔ سحری میں دہی کا سوال نہ کیا کریں، جنت کا سوال کیا کریں۔ ایسا قیمتی وقت افطاری اور سحری کا دعا کا اسی شور میں گزر جاتا، یہ دے دو وہ دے دو، یہ پکڑا دو وہ کر دو، نہ کیا کریں، نہ گھروں میں کریں، نہ مسجد میں کریں، نہ اعتکاف میں کریں۔ سحری تو دعا کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تجھے بخشش چاہیے؟ کوئی ہے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو سنوں؟ کوئی ہے مانگنے والا کہ عطا کروں؟ بادشاہ کہہ رہا ہے مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم، وہ غفار، وہ رحیم، وہ کریم پکارتا ہے کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ میں اس کے گناہ بخشوں؟ اور کتنے ہی ہیں جو اس کو کہتے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وہ ان کو دعائیں بھی آتی ہیں اور دعاؤں کا ترجمہ بھی آتا ہے، وہ پکارتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی۔ جسے ترجمہ ہی نہیں آیا اس کو کیا دعا آئی؟ جسے قرآن کی سمجھ ہی نہیں آئی اس نے کیا پڑھنا؟ وہ کہتا ہے زندگی بدل گئی۔ کسی سے پوچھتا ہوں، وہ کہتا ہے مجھے کل پرسوں بندہ ملا، کہتا سارے رمضان ہی کبھی 4 پارے رات پڑھے، کبھی 5 پارے پڑھے، کہتا رات اس میں لگ جاتی 4-5 پارے پڑھتا ہوں سرور ہی آ جاتا ہے۔
اور कई मिलेंगे पूरा रमजान गुजर जाएगा, उनका कुरान पूरा नहीं होगा। कुरान जिंदगी में है नहीं। तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, वक्त बड़ा कम रह गया। जुमा भी पढ़ा जाएगा और 2-3-4 दिन है, गुजर जाएंगे, जाया नहीं करने। एक लम्हा भी बड़ा कीमती है। अगर बख्शिश हो गई, और जिसकी बख्शिश हो गई, जिसके गुनाह माफ हो गए, जिसको जन्नत में जगह मिल गई, जिसने अपने रब को राजी कर लिया, इसी की ईद है। ईद नए कपड़ों से पहनने से नहीं आएगी। ईद सवैयों खीर का नाम नहीं है। ईद तो गुनाहों की बख्शिश का नाम है। ईद तो इसका नाम है कि बाहर से भी धुले हो, अंदर से भी धुले हो, बाहर भी कपड़े साफ पहने हो, दिल भी साफ हो। जिस तरह बाहर उजले निखरे हैं, अल्लाह ताला हमें अंदर से भी इतना ही उजला और निखरा करते हैं। और अल्लाह का फैसला है। अल्लाह कहता, बंदे तू परेशान ना हो, तू माफी के मसले में टेंशन ना ले, तू आ तो सही। अल्लाह ताला तो माफ। मुसलमान से मिलता है, हाथ मिलाता है, गुनाह यूं झड़ जाते हैं जैसे पत्ते झड़ते हैं, यूं गुनाह झड़ते हैं, इतनी सी बात। वुजू करता है, आखिरी कतरा वुजू का गिरता और गुनाह भी गिर जाता है, जितने गुनाह होते खत्म। नमाज पढ़ता है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज पढ़ने वाले की मिसाल ऐसे है, 5 नमाजें अदा करने वाले की, जैसे उसके दरवाजे के आगे नहर है। उसके घर का दरवाजा नहर पे खुलता है और दिन में 5 दफा उसमें नहाता है, जैसे उसके बदन पे कोई मैल नहीं होती, नमाज पढ़ने वाले के बदन पे भी कोई गुनाह नहीं होता। हाँ, इंशाअल्लाह मेरे भाइयों ने, बहनों ने तहिया कर लिया अपना, अपने बच्चों का। इस रमजान में कोताही नमाज की खत्म हो गई है। अब बस जब तक जिंदा हूं, नमाज में कोई कोताही नहीं। मेरे रब का वादा है कि जो 5 वक्त की नमाज मैंने फर्ज की है, जो इसको मामूली नहीं समझेगा, इसकी अहमियत जानेगा, इसकी हैसियत के मुताबिक इसको अदा करेगा, अल्लाह कहता मैं उसको बख्श दूंगा। एक रमजान दूसरे रमजान के गुनाहों का कफारा, एक जुमा पिछले जुमा तक के गुनाहों का कफारा, एक नमाज दूसरे नमाज तक के गुनाहों का कफारा, हिजरत गुनाहों का कफारा, इस्लाम लाना गुनाहों का कफारा, हज करना गुनाहों का कफारा, सदका देना गुनाहों का कफारा। अल्लाह ताला तो बंदे को बख्शने के बहाने ढूंढता है। कहता तू कर जो करना है। एक दिन हदीस पढ़ो, या अल्लाह तो हमें तौफीक दे। हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, मगर जो पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते वो उड़ जाते हैं। कुछ नमाज पढ़ के तस्बीहां पढ़ते हैं और कुछ नमाज पढ़ के उड़ जाते हैं। उठ जाते कि उड़ जाते हैं। 33 सुभान अल्लाह, 33 अल्हम्दुलिल्लाह, 33 अल्लाहु अकबर। एक दफा कहता ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। समुंदर की झाग के बराबर भी गुनाह होंगे तो अल्लाह बख्श देगा। ये एक दफा पढ़ने से है। और जो 5 नमाजों में पढ़ता है, जो रात को सोने वक्त पढ़ता है, मैंने क्या कहा, समुंदर की झाग के बराबर भी गुनाह होंगे। समुंदर की झाग के बराबर। अल्लाह कहता चल माफी। अल्लाह कहता तो फिरता कहां है, आ तो सही, गफलत ना कर, दिल तो मिला, पेशानी तो झुका, जुबान से कह तो सही तौबा, मेरी तरफ आ तो सही, कोई तवज्जो तक कर। कहां टामक तोइयां मार रहा है, कहां खज्जल हो रहा है, मेरी तरफ आ। तुझे पता नहीं तेरा रब कौन है। नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम। ऐ नबी मेरे बंदों को बता तो सही, इनको खबर तो दे, शायद इनको पता ही नहीं है, ये मुझे जानते ही नहीं। नब्बी इबादी, मेरे बंदों को खबर तो दे, अन्नी अनल गफूर रहीम, बेशक मैं कौन हूं, बड़ा ही बख्शने वाला हूं, बड़ा ही रहम वाला हूं। इनको बता मैं कौन हूं, बता तो सही। वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तगफिरल्लाह यजिद लहा गफूरर रहीम। तुमसे गलतियां हुई हैं, तुमने गुनाह किए हैं, कोई बात नहीं। वमन यअमल सू, तुम बुराइयां कर बैठे हो ना, औ यज़लिम नफ्सहु, अपनी जानों पे ज्यादतियां कर गए हो,
تم نے کیا نا, گڑبڑ کر چکے ہو نا, جھوٹ بولنے ہیں, خیانتیں کی ہیں, ظلم کیے ہیں, دھوکے دیے ہیں, نمازیں چھوڑی ہیں, پٹھے سیدھے سارے کام کیتے. اللہ کہتا کر لیے نا, کوئی گل نہیں, کر لیے نا, زندہ ہے ابھی, مرا تو نہیں. جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے. آ جا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, گناہ تجھ سے ہوئے, زیادتیاں تو نے کی ہیں, ثُمَّ يَسْتَغْفِرْ اللَّهَ, پھر کیا کر, اللہ سے بخشش طلب کر, يَجِدْ لَهَا غَفُورًا رَحِيمًا, تو اس کو کیا پائے گا, بڑا ہی بخشنے والا, بڑا ہی بخشنے والا, بڑا ہی رحم کرنے والا. اچھا جب اللہ بخشش کی بات کرتا ہے ساتھ رحم بھی کہتا ہے. میری بخشش نہیں کہتا کہ میں بخش دوں گا, ساتھ کہتا ہے بخشنے والا اور رحم والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم. تعارف بڑا کراتا ہے, میری رحمت اور مہربانی کو کبھی بھلانا نا, تیرا رب ہے کون اس کی شان دیکھنا. میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی 100 رحمیں, اللہ کی 100 رحمتیں ایک دنیا میں اتاری ہے. ساری دنیا جو ایک دوسرے سے پیار کرتی ہے, ماں اپنے بچوں کو پالتی. حدیث میں آتا ہے گھوڑی جو اپنے بچے پہ پاؤں نہیں رکھتی, درندے اپنے بچوں کو پالتے ہیں. یہ سب رحم جو ہے وہ ایک دنیا پہ اتارا ہے, 99 اللہ نے اپنے پاس رکھے. اور قیامت کے دن اس ایک کو بھی واپس کرے گا, 100 پورے ہوں گے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشے گا. ہم نے رب کو پہچانا نہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قیدی آئی, بڑی حدیث پڑھنے والی کتابوں میں آتی. قیدی آگے, بچے, عورتیں, لوگ. ایک عورت دیوانگی سے دوڑتی پھرتی ہے, بچہ اس کا گم ہے. اس کا بچہ اس کو ملتا نہیں, بچہ گم ہے, وہ ڈھونڈتی پھرتی. اس کا بچہ اسے ملا, اس نے اس کو لپیٹا, اپنے پیٹ کے ساتھ لگایا, دودھ پلانے لگی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, اس کو کہو اس کو آگ میں پھینک دو. اسے کہو نا اس عورت کو اسے آگ میں پھینکے. جس نے اس محبت کے ساتھ اس کو ڈھونڈا ہے, ملا ہے تو چمٹائی پھرتی ہے, دودھ پلا رہی ہے. ماں کا گما بچہ ملے, آپ سمجھتے کہ وہ کیا اس کی کیفیت ہوگی. اور پردیش میں, قید میں, نہ علاقہ اپنا نہ زبان اپنی, قید میں آئی ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, کیا کیفیت ہوگی. بچہ نہ ملا, بچہ ملا تو کیا اس کا دل ہوگا. اس کو قریب کرتی ہے, اسے اپنے ساتھ چمٹاتی ہے, دودھ پلانا شروع کرتی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا سمجھاتے تھے, کہ اس کو کہو کہ اس کو آگ میں پھینکو. صحابی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں تک اس کا بس چلے گا یہ اس کو آگ میں نہیں جانے گا. یہ کیا کوئی بھی پھینکے گا تو یہ اپنے بچے کو بچائے گی. تو فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ یہ آگ میں نہیں جانے دے گی, تو رب کی محبت اس سے کہیں زیادہ ہے. تو فکر نہ کر, توبہ کر, رجوع کر, پلٹ کے آ. یجد لہا غفور الرحیمہ, تو اس کو غفور پائے گا, رحیم پائے گا, بخشنے والا پائے گا, رحم والا پائے گا. کہنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا, اگر تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا, مجھے بخشا نہ, لنکونن من الخاسرین, میرے پلے کچھ نہیں. دعا کرے بندہ پنجابی میں, اردو میں, عربی میں, اور منا لے اپنے رب. فرمایا مومن گناہ کرتا ہے, اسے ایسے لگتا ہے کہ پہاڑ اس کے سر پہ آ گیا, جب تک معافی نہیں مانگتا اس کو سکون نہیں ہوتا. اور فاجر, منافق, وہ گناہ کرتا ہے, ناک پہ مکھی بیٹھی اڑا دی, اس کو پرواہ نہیں ہوتی گناہ کی. گناہ کی شدت کو محسوس کرنا, گناہ کے بعد توبہ کے لیے تڑپنا کہ میری معافی ہو جائے, اپنے گناہوں کو یاد کرنا, اور پھر کہنا یا اللہ کوئی ترتیب بنے کہ میں بخشا جاؤں. اللہ کہتا تو کیوں پریشان ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, کہہ دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں, ظلم کیے ہیں, غلطیاں کی ہیں, کر بیٹھے ہو نا,
कई उल्टे सीधे काम कर दिए हैं, कोई आंखों के गुनाह कर दिए हैं, कोई जुबान के गुनाह कर दिए हैं, कोई कान के गुनाह कर दिए हैं, कोई हाथों के गुनाह कर दिए हैं, कोई हकूकुल्लाह मार गए हो, कोई हकूकुल इबाद दबा गए हो। आ जाओ ना, तुमने अब ज्यादती कर ली ना अपने ऊपर। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह तो कितने गुनाह बख्शेगा, मेरे तो इतने गुनाह के बनेगा क्या। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, मैं 2 4 10 100 नहीं बख्शूंगा, तेरे सारे बख्शूंगा। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, तेरे सारे के सारे बख्शूंगा। तू जानता नहीं है, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, वो कोई आम नहीं है, वो है, वही तो है बख्शने वाला और रहम करने वाला। तू जानता नहीं। हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से नकल करते हैं। हदीस किसकी? अल्लाह की। हदीस कुदसी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से नकल करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरा बंदा गुनाह करता है, फिर वो क्या कहता है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे। गलती करके ना कहता या अल्लाह मेरे गुनाह बख्श, अल्लाह मैनू माफ कर। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली रब्बि अग़फ़िर ली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना दुनूबना, वो पुकारने लग जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरा बंदा ना, इसको पता है मेरा रब है जो बख्शता है और पकड़ता भी। सिर्फ बख्शता नहीं, उसको पता है वो पकड़ भी लेता है। वह अन्ना अदाबी, यहां जहां कहा नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, आगे क्या कहा? वह अन्ना अदाबी वल अज़ाबुश शदीद, मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है। लापरवाह ना होना, बख्शूंगा तो मेरी इंतहा कोई नहीं, पकड़ूंगा तो मुझे को छुड़ा नहीं सकता। ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान में रहता है। तो कहा अल्लाह ताला कहता है मेरा बंदा है ना, उसको पता है कि मेरा रब है, वो बख्शता है और पकड़ भी लेता है, मैं उसको गुनाह बख्श दूं। फिर मेरा बंदा गुनाह कर लेता दोबारा, फिर कहता है या अल्लाह बख्श दे, या अल्लाह बख्श दे, ऐ अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह ताला कहता है ये मेरा बंदा, सुनो, इसको पता है कि इसका रब है, ये एक बंदा है, इसका रब है ना, वो बख्शने वाला है और उसकी पकड़ बड़ी शदीद है, उसकी गिरफ्त बड़ी पक्की। फिर गुनाह करता। आपने 3 दफा कहा बंदे तू जो भी कर ले मैंने तुझे बख्श देना। क्या हदीस है? बंदे जो तू कर लेना, जब तू बख्शिश मांगेगा मैंने तुझे बख्श देना। अल्लाह ताला को क्या पसंद है? रात क्या पढ़ा? तुहिब्बुल अफ़्वा पढ़ा था रात। अल्लाह तुझे माफी पसंद है, अल्लाह को अजाब पसंद नहीं है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अल्लाह कहता मैंने तुम्हें अजाब देके क्या लेना। अल्लाह कहता अजाब अल्लाह के गुस्से पे क्या भारी है? रहमत। अल्लाह ने लिखा कतब अला नफ्सिही रहमा, अल्लाह ने अपने नफ्स के ऊपर लिख दिया रहमत। अल्लाह का गुस्सा ज्यादा नहीं है, अल्लाह का रहम ज्यादा है। गुनाह करता है तो 1, नेकी करता है तो 10, 70, 700, जितना मर्जी दे। रोजे वाले को कहा तू नेकी ना गिना कर, रोजेदार को कहा कैलकुलेटर पीछे कर दे, खाते पीछे कर दे, तेरा अजर मैं दूंगा, तू गिनती ना कर, बगैर गिनती के दूंगा। रोजे के लिए क्या कहा? ये मेरे लिए और इसका अजर भी मैं ही दूंगा, मिकदार नहीं है। पता नहीं रब ने क्या देना है। अगर एक रात 1000 महीनों से अफसर है तो कुल जिंदगी क्या होगी? जो लग जाए इस बात में, जिसको ये हो जाए, कहा बंदे मैंने तुझे बख्शना ही बख्शना, तुझे क्या मसला है? अवला यतूबूना इलल्लाहि वस्तगफिरूनहु वल्लाहु गफूरुर रहीम। और तुम्हें हुआ क्या? तुम तौबा क्यों नहीं करते? क्या माजरा है कि तुम तौबा नहीं करते और उससे इस्तिगफार नहीं करते, बख्शिश नहीं करते? क्या तुम्हें पता नहीं कि वो बख्शने वाला है? बंदे तौबा बंदे ने करनी, सवाल रब कर रहा है।
पूछते हैं अफला यतूबूना इलल्लाहि वयस्तगफिरूनहु वल्लाहु गफूरुर रहीम। माजरा क्या है? हुआ क्या है कि तुम तौबा नहीं करते? इतनी जिंदगी गुजर गई है, इतने मरहले गुजर गए हैं, इतने गुनाह गुजर गए, तू तौबा क्यों नहीं कर रहा? या अल्लाह तू कितना करीम है, गुनहगार मैं हूं और पूछ तू रहा है। अफला यतूबून इलल्लाह वयस्तगफिरूनहु वल्लाहु गफूरुर रहीम। शायद तुझे अपने रब का तारुफ नहीं है, तो जितना भी गुनहगार है वो गफूर है, वो रहीम है, तुझे पता ही नहीं। वइन्न रब्बक लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नास अला ज़ुल्मिहिम वइन्न रब्बक लशदीदुल इक़ाब। ये जो हदीस मैंने पढ़ी ना, पकड़ने पे आ गया ना, उसे पता है वो पकड़ता भी है। बेशक तेरा रब कौन है? तू ज्यादतियां कर ले तो उसको बख्शने वाले पाएगा। लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नास अला ज़ुल्मिहिम, लोगों की ज्यादतियों के बावजूद तुम उसको बख्शने वाले पाओगे। वो बड़ा ही माफ करने वाला है, कोई है जो उसकी तरफ आए? अफला यतूबूना इलल्लाहि वयस्तगफिरूनहु वल्लाहु गफूरुर रहीम। नबी करीम, चलिए मैं पहले एक आपको आयत सुनाऊं, मजा आया, मुझे भी आया। या अल्लाह ये आयतें हमें याद करा दे, हमारे बच्चों को हाफिज बना दे, आलिम बना दे। ऐ अल्लाह हमें कुरान का ज़ौक़ अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें कुरान की तिलावत अता फरमा देना। ऐसा ना हो कि रमजान गुजर जाए और कुरान भी चला जाए, अगला जुमा बिरानियां हो जाए। या अल्लाह इस वक्त से बचा लेना। तौबा तो यह है ना कि गुनाहों का एतराफ करना, सच्चे दिल से माफी मांगना और आइंदा ना करने का अहद करना। सहाबा की तौबा तो बस तौबा थी, वो को तौबा जुबान से करते थे। वो औरत थी ना क्या, जिसने कहा मेरे पेट में बच्चा है और मैंने ये गुनाह कर लिया, आप कहने लगी मुझे पाक करें। लंबी हदीस है, मेरे पास इतना टाइम नहीं मैं पूरी पढ़ूं, आपने खुद पढ़ी। आप उसका जनाजा पढ़ाने लगे, रजम किया था, संसार किया था। तो सैयदना उमर आए रज़ी अल्लाह अन्हु, कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसका जनाजा पढ़ाएंगे? यानी ये तो गुनाहगारा थी, आपने इसको रजम करवाया है, आपने इसको संसार करवाया, पत्थर मार मार के इसको मारा गया है, इसका गुनाह ऐसा था, आप इसका जनाजा पढ़ाएंगे? फरमाया उमर, अगर मैं मदीने के 70 गुनहगारों पे इसकी तौबा तकसीम कर दूं, इस अकेली औरत की तौबा से वो सारे बख्शे जाए। तू नहीं जानता कि ये तौबा करने के लिए अपनी जान दे गई, जुबान से तौबा की कि जान कुर्बान कर गई, ऐसी तौबा की कि अपनी जान दे। माइज की तौबा के बारे में क्या कहा? रज़ी अल्लाह तआला, खुद सजा लेने के लिए आए, संसार हुए। मेरे नबी कहने लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उम्मत पे इसकी तौबा बांट दूं तो उम्मत इसकी तौबा से बख्शी जाए, मैं इसकी तौबा उम्मत में बांट दूं, बख्शी जाए। एक दफा पर्दा किया है, दोबारा छोड़ा नहीं है। एक दफा शराब छोड़ी है, दोबारा हाथ नहीं लगाया। एक दफा नमाज शुरू की है, फिर कभी छूटी नहीं। एक दफा गुनाहों से निकले, कभी करीब नहीं गए। जिंदगियां बदल दी हैं। हम जैसे थे कोई, मक्के का माशरा था, शराब थी, जुआ था, बदकारी थी, जुल्म था, कत्ल थे, सूद थे, हर चीज मौजूद थी। ऐसी तौबा की कि दुनिया के इमाम बन गए। अल्लाह कहता है जाली तौबा ना करी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। मुखलिस होकर तौबा करी, पक्की तौबा करी, मेरे से गाल पक्की करी, पक्का बन के तौबा करी, तेरे गुनाह बख्श दूंगा, तुझे जन्नत दूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। मुल्क खसारे में है, कौम बेकारी में है, हम भिखारी हैं। अल्लाह कहता तौबा तो करो, एक दो नहीं, सारे सब मिलके इज्तिमाई तौबा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि जमीअन, सारे अय्युहल मुमिनून, ए मोमिनो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम्हें फलाह की, कामयाबी के का रास्ता मिले। अगर मुल्कों को, कौमों को, मिल्लत को कामयाबी पर डालना है तो तौबा करनी।
کہا تو توبہ کر، دیکھ میں کیا کرتا ہوں پھر۔ اللہ اکبر۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیم۔ اچھا، قرآن مجید کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں توبہ پہلے اور ایمان، ویسے بھی طریقہ یہی ہے۔ دنیا میں پہلی عبادت جو ہوئی وہ کیا تھی؟ آدم علیہ السلام نے جو پہلی عبادت کی وہ توبہ ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، دنیا میں پہلی نماز نہیں پڑھی گئی، پہلا روزہ نہیں رکھا گیا، اس کائنات کی پہلی عبادت توبہ تھی۔ کتنے لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں؟ اور توبہ کس کی ہے؟ وہ حدیث آپ کو یاد ہے، میں پھر دوہرا دیتا ہوں۔ آدم کے بیٹے کو 2 پہاڑ سونے کے ملے، یہ تیسرے کی تلاش میں نکلے گا، قبر کی مٹی کے سوا اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ توبہ تو اس کی جو توبہ کرے گا، توبہ تو اس کی جو توبہ، اور توبہ صرف زبان سے نہیں ہے، توبہ تو گناہوں کو چھوڑنے کو کہتے ہیں۔ اس پہ میں حدیث پڑھوں گا گناہوں کو چھوڑنے کی۔ تو ابھی تو میں یہ پڑھنے لگا تھا آپ کے ساتھ، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے ان کے کہ جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ صرف توبہ کرنی کہ نیک عمل بھی کرنے؟ اللہ تو جہاں توبہ بیان کرتا ہے وہ عمل صالحہ بھی بیان کرتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ الْحَسَنَاتِ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ کیا خوبصورت اللہ کا نظام ہے، تو گناہ لائے گا ہم تجھے نیکیاں دیں گے، تو توبہ کرنا، ایمان لانا اور نیکی کرنا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تیرے تو رب کی تاریخ ہے، یہ تو ہمیشہ سے ہی بے شمار بخشنے والا، رحم کرنے۔ جب اللہ تعالیٰ توبہ بیان کرتا ہے غفور رحیم ساتھ ہی کہہ دیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ میں ایک جمعے میں آپ کو کیا توبہ پڑھاؤں گا، واللہ یہ تو دن رات بندہ قرآن پڑھے تو اس میں سے نکلے۔ جس کو لگن لگ جائے توبہ کی، تڑپ لگ جائے، کہ وہ اللہ ہے جو اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے، اور جو تم نے کیا اللہ کو سارا پتہ ہے، وہ تمہارے کاموں سے واقف ہے، اس سے چھپ نہیں سکتے۔ دنیا سے چھپو، یہ لکھا ہوتا گناہ کرنا چھوڑ دو، یا وہ جگہ تلاش کرو جہاں اللہ نہ دیکھے، کوئی جگہ ہے؟ مگر ہم تو ہمیشہ لوگوں سے چھپ کے گناہ چھوڑتے ہیں، اللہ سے کون چھپتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے طرح روشن نیکیاں لائیں گے، تاریک گناہ نہیں لائیں گے، روشن نیکیاں، اور کلو 2 کلو 1 ٹن لائیں گے کہ تہامہ پہاڑ لائیں گے، نیکیوں کا پہاڑ روشن۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں بکھیر دے گا، ریت کے ذرات میں تبدیل کر دے گا، پہاڑ کو ساری نیکیاں راکھ بنائے گا۔ تو صحابہ نے کہا آپ ان کے بارے میں ہمیں بتا دیں، صوبان کہتے ہیں ہم نے کہا آپ ان کے بارے میں ہمیں بتا دیں، کہیں ہم اس میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ وہ کہا وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، اور راتوں کو قیام کرنے والے ہوں گے، رات کی عبادت کرنے والے ہوں گے، ان کی روشن نیکیاں اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دے گا، ان کی ساری نیکیاں ہوا میں بکھیر دے گا، اور راتوں کے قیام کرنے والے تمہارے بھائی ہوں گے۔ کیوں؟ لوگوں میں نیک ہوں گے، اور جب تنہائی میسر آتی ہوگی تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے مرتکب ہوتے جاؤں گے۔ اب کوئی نہیں دیکھتا، اب کر لیتا ہوں، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، موبائل میں جو مرضی دیکھ لو، اب کوئی نہیں دیکھتا، اب سود کھا لو، اب کوئی نہیں دیکھتا، کسی کو نہیں پتا، یہ پلاٹ کھا جاؤ۔ کہ جب کوئی نہیں ہوگا، ان کو اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ او بھائی بیٹھ جاؤ، بعد میں کر لینا جو کرنا ہے، بعد میں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ذرات میں تبدیل کر دے گا۔ تنہائی میسر آئی، تنہائی میسر آئی، اور اللہ کا خوف، دنیا سے ڈرا، اللہ سے نکلا۔ تو میں حدیث بیان کرنے لگا تھا، یہ بھی کہا میں اپنی امت کے اس آدمی کو جانتا ہوں جو جنت میں جانے والا آخری ہوگا، اور جہنم سے نکلنے والا بھی آخری۔ ظاہر جنت میں آخری جائے گا، جہنم سے بھی آخری نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے،
और उस कहेंगे कि इसके सामने इसके गुनाह रखो, बड़े गुनाह छुपा लो, छोटे रखो। तो छोटे छोटे गुनाह उसको बताए जाएंगे, वो इनकार नहीं कर सकेगा। रिकॉर्ड चल रहा होगा ना, बंदे की स्टोरी उसके सामने चले, वो इनकार नहीं कर सकेगा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे क्या मेरा रब है, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, वो गुनाहों को नेकियां बना दे। कहा तू नेक हो जा, वो तेरे गुनाह भी नेकी करेगा, तू तो नेक हो। अल्लाह ताला गुनाहों को नेकियां बना देगा, अल्लाह छोटे गुनाह उसके रखेगा, फिर कहेगा चलो इसकी नेकियां बना देते हैं। आगे से बंदा क्या कहेगा, ए अल्लाह मैं अपने कामों में यहां कुछ कम देख रहा हूं, क्योंकि बड़े गुनाह तो दिखाए नहीं थे, छोटे दिखाए थे। जो गुनाहों से डरा बैठा था कि मेरा बनना क्या, वो कहेगा अल्लाह मैं अपने गुनाहों, अपने कामों में से कुछ कम देखता हूं कि बड़े गुनाह तो जाए नहीं, अगर नेकियां बननी बड़े गुनाह कहें। साहबी कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे और आप हंसने लगे कि आपकी दाढ़ें दिखने लगी कि ऐसा बंदा है कि गुनाहों की नेकियां होगी, अल्लाह कहेगा छोटी दिखाओ, बड़ी रोको, जब नेकियां मिलेगी कहेगा अल्लाह काम पूरा तो नहीं, गुनाह मेरे पूरे तो नहीं आए। वो तो करीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत में से एक बंदा लाया जाएगा, 99 रजिस्टर होंगे गुनाहों के, उसके 99 दफ्तर, और कोई अल्लाह की तरफ आए तो सही। और एक एक रजिस्टर कितना होगा, तहद्दे निगाह, जहां तक देखेगा एक 99 खाते उसके होंगे गुनाहों के। अल्लाह ताला पूछेंगे तेरे पास कुछ और भी है, कहेगा नहीं ये गुनाह नहीं। अल्लाह ताला कहेगा कोई उज़र तेरे पास, कहेगा कुछ नहीं, कोई बहाना कुछ नहीं, गुनाह ही गुनाह, 99 रजिस्टर, एक एक तहद्दे निगाह। अल्लाह कहेंगे हमने तेरी एक नेकी रखी हुई है, वो इसको मामूली जानेगा कि 99 मेरे रजिस्टर एक नेकी से क्या होगा। अल्लाह ताला उसको एक पर्चा देंगे जिस पे लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहेगा तुलवा ले, वो सोचेगा एक पर्ची और मेरे खाते, अल्लाह कहेगा जा, तुलवाएगा, 99 रजिस्टर हल्के हो जाएंगे, वो पर्ची भारी हो जाएगी। आप फरमाते हैं जब अल्लाह का नाम तोला जाता है तो कोई चीज इसके बराबर नहीं, 99 रजिस्टरों वाला एक कलमे के ऊपर बख्श दिया जाएगा। कोई आए तो सही उसकी तरफ। मैंने अभी आपसे कहा अल्लाह को तौबा पे खुशी है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला को बंदे की तौबा पे इतनी खुशी होती है, आपको क्या मालूम कि सहरा क्या होते हैं, पुरखतर रस्ते क्या होते हैं, जंगल और वीराने कहां होते हैं। जंगलों में, वीरानों में, सहराओं में, पुरखतर राहों में एक आदमी जा रहा था, मोटरवे पे नहीं था, जीटी रोड पे नहीं था, लाहौर में नहीं था, सहरा में था। और सहरा के भूले हुए कभी बचते नहीं है। सहरा की प्यास बंदों को मार देती है। सहरा और दलदल बड़े दुश्मन होते हैं इंसान के। अल्लाह ताला बचा के रखे। तो वो जा रहा था, कहीं रुका तो उसकी सवारी उस पर खो गई, उसका खाना पीना भी उसके ऊपर था, उसका मता, उसका सामान, उसका तोशा भी उसके ऊपर था। सवारी गुम गई। अब उसको तलाश करता है, तलाश करता है, हत्ता के मायूस हो गया कि अब सवारी नहीं मिलेगी, मैं भूख प्यास से मरूंगा, अब बचना नहीं। मायूस हो गया, मायूस होके लेट गया अपनी जगह पे। अचानक देखता है तो उसकी सवारी सामने खड़ी है और कोई सामान, कोई चीज उससे कम नहीं है। फरमाया जितने, और खुशी में क्या पुकार उठता है कि तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। अपने आप को रब कहता है, अल्लाह को बंदा कहता है। कहा जितनी खुशी इसको होती है, अल्लाह ताला को बंदे की तौबा पे इससे ज्यादा खुशी होती है। उम्मीद, यकीन, दुआ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बंदा दुआ में लगा ही रहता है, बख्शिश मांगता ही रहता है। सुबह को बख्शिश, नमाजों से पहले दुआ। उसने कभी यह कहा ही नहीं कि मेरी सुनी नहीं जाती। अक्सर लोग तो इसी में अपनी दुआएं बर्बाद कर गए कि मेरी सुनी नहीं जाती। और जी बथेरियां दुआ करी जाने कबूलता होती है जी, इनका तो बेड़ा गर्क हो जाता है। यकीन के साथ दुआ करता है कि मेरी सुनी जाएगी, वो मुझे माफ करेगा, मेरे गुनाहों के नुक्ते वो धोएगा,
फरमाया ना, बंदा गुनाह करता है, एक नुक्ता लगता है, फिर गुनाह करता है, दूसरा नुक्ता लगता है, फिर गुनाह करता है, तीसरा, हत्ता के दिल हंडिया के नीचे जो ये होती ना हंडी, अब तो मिट्टी की हंडियां नहीं है, स्याह हो जाता है, इस तरह का दिल स्याह हो जाता है। कल्ला बर्राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, ये पढ़ा, हरगिज नहीं, दिलों पे तो जंग लगे उनके अमाल की वजह से। फिर तौबा करता है और उसका दिल चमकने लगता है। रोजेदारों, मोतकफीन, अगर दिल चमकने लगा तो मुबारक हो। और दिल की चमक चेहरे पे आती है, दिल की चमक अमाल में आती है, दिल की चमक सुरूर देती है, दिल की चमक सजदों पे मजबूर करती है, दिल की चमक लंबी लंबी नमाज पढ़ने पे खड़ा करती है। दिल मुर्दा हो तो अमल को दिल नहीं चाहता, दिल जिंदा और रोशन हो तो अल्लाह से दुआ बड़ी होती है। बंदा दुआ का इंतजार करता, मुझे दुआ का मौका मिले, पुकारता रब को, तो कहता मेरा बंदा दुआ में लगा रहता है, मुसलसल कोशिश करता है, बख्शिश मांगता रहेगा। फिर क्या फरमाया, बंदे तू क्या, किस बात की तुझे परवाह है? अल्लाह कहता मुझे किसी बात की परवाह नहीं, तू आसमान के किनारों तक गुनाह कर ले और ये दुआ करता रहे और बख्शिश करता रहे, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैं तुझे बख्श दूंगा। तू सारी जमीन को गुनाहों से भर और फिर तू तौबा कर, मुझे किसी की परवाह नहीं, जितने तू गुनाह लाएगा मैं उतनी मगफिरत लेके आऊंगा। आ तो सही, रो तो सही। कहते हैं ये तौबा के आंसू बड़े कीमती होते हैं, गिरते बाहर हैं, धुलता दिल है, निकलते आंसू आंखों से हैं, गिरते चेहरे पे हैं, सफाई दिल की होती है। एक रात रो लेना है, और इज्तिमाई रोना भी रोना ही होगा, और रोना तो इनफिरादी है। तन्हाई में बैठा था, अल्लाह को याद कर रहा था, आंसू बह गए, अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा, अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा। गुनाह छोड़ने हैं, फमन ताब मिन बअदि ज़ुल्मिही व अस्लह फइन्नल्लाह यतूबु अलैहि। जिन्होंने तौबा की और उसके बाद क्या किया, इस्लाह, अल्लाह ताला उनको माफ कर देगा। आए एक हदीस पढ़ें, हदीस का भी एक लफ्ज है, पहली लाइन वो बहुत याद रखने की। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी, फिर मेरे दिल ने इसको महफूज कर लिया। हदीस कानों से सुननी और दिल में उसको क्या समझ आई इस हदीस से? कहा मेरे कानों ने यह हदीस सुनी और मेरे दिल ने इसको महफूज कर लिया। बनी इसराइल का एक आदमी था, 99 कत्ल करके, नाहक, बिला वजह 99 बंदे मार दिए। तौबा की जुस्तजू हो गई, तौबा की जुस्तजू हो गई। ये तौबा की जुस्तजू, ये तौबा की तड़प, ये तौबा की लगन, ये तौबा की बेकली, ये तौबा की बेकरारी, ये तौबा की बेचैनी, यही तो नेमत है। हदीस में क्या आता है, नदामत ही तौबा है, शर्मिंदगी ही तौबा है। जिस तरह थाने में बंदा खड़ा शर्मिंदा होता है, गुनाह के बाद रब के सामने ऐसे शर्मिंदा होता है। हजरत मास को कहा अल्लाह से यूं हया करना जिस तरह अपने घर वालों से हया करते। बाप की हया में सिगरेट नहीं पीते, मां के सामने गंदी चीज नहीं देखते, बीवी के सामने कोई गलत फोन नहीं करते। कहा जिस तरह घर वालों से हया करता, रब से हया कर लेना। तुझे लोगों की हया मारती, रब से हया नहीं आती। रब देख रहा हो, तू जमीन पे गुनाह कर रहा है, तुझे समझ नहीं आती। तौबा, तौबा अंदर फूट पड़े, उसके अंदर तौबा की जोत जाग गई। 99 कत्ल कर चल पड़ा कि अब तौबा करें। हमारे तो पता नहीं बेकार लोग, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, शुक्र करें अब आज भी चले जाएगी तो अल्लाह बख्श देगा, ਤੁਹਾਡਾ मसला कोई। ऐ सारी जिंदगी इन्होंने इंज गुजारी है, बुढ़े वाले नेक हो गए, शुक्र है। बूढ़े हुए मरे तो नहीं है, बूढ़े की तौबा भी कबूल है। जवानी इंज गुजारती, हुण बुढ़े किसी जोगे नहीं रह के हज कर लिया। बड़े हाजी साहब मत करें, ये नुकसान कर देंगे। जिसको जिस दिन तौबा के मौका मिल गया कर जाए। मौत से पहले तौबा है, क़यामत से पहले तौबा है। 99 कत्ल किए, तुर पे दरवेश के पास पहुंचा, कहता तौबा। वो भी कोई ऐसा मुफ्ती था ना आज वालों,
यहां भी बड़े कस्में खाते, तुमने नहीं बख्शे जाना। मैं कहा तू बख्शना, तुम्हारे गुनाह नहीं बख्शे जाएंगे। मैंने कहा भाईजान आपके हाथ में नहीं है, अल्लाह के पास है, आप फतवा मत दे। हमारा यकीन है जो उससे मांगेगा उसको देगा, जो उससे तौबा करेगा कबूल करेगा। डराएंगे जरूर लोगों को, मगर तौबा से भगाएंगे नहीं। 99 कत्ल करके चला, उससे कहता तौबा, कहता 99 के कत्ल पे भी तौबा होती? कोई तौबा नहीं। उसने कहा अच्छा, उसने वो भी मार दिया 100 पूरे, मगर तौबा का जज्बा खत्म। अच्छा गुस्से में मारा ना वो भी, इसलिए थोड़ी मारा कि कत्ल करना चाहता था, मारा तो इसलिए कि तौबा के लिए रास्ता क्यों नहीं देते। इसी रद्द अमल गुस्से में 100 भी मार दिए, तड़प फिर खत्म ना। आलिम के पास पहुंचा, जमाने के सबसे बड़े आलिम के पास, क्या तब तो 100 मार दिए, तौबा करना चाहता। क्या बात बंदा था। कहने लगा अल्लाह के बंदे, तेरे और रब के दरमियान क्या चीज है, रुकावट क्या है? तौबा कर, तेरे और उसके दरमियान को पर्दा है? तेरे और उसके दरमियान चीज क्या है? क्या क्या किस चीज ने मना किया तुझे तौबा से? तौबा कर। बात तो अगली करनी है, गुनाहों की बस्ती को छोड़ दे। तौबा का क्या माने? गुनाहों की बस्ती को नसरा में चला जा, बस्ती का नाम पता है नसरा, नेक लोगों में चला जा। अगर तौबा करनी तो गुनाहों की बस्ती को नेक लोगों में चला जा। तौबा करके गुनाह छोड़ के, गुनाहों की बस्ती छोड़ के नेकों में चला। फमन ताबा मिन बादि ज़ुल्मिही वासला। किसके लिए तौबा है? व इन्नी लगफ्फारु लिमन ताबा व आमना व अमिला सालिहन सुम्मा इहतदा। अल्लाह ताला कहते हैं हम तो उसको बख्शने वाले हैं जिसने तौबा की, ईमान लाया, नेक अमल किए, फिर सीधे रास्ते पे चला। 4 चीजें बयान की हैं, तौबा, ईमान, नेकी, सिरात मुस्तकीम। इन्नी लगफ्फार, और बेशक मैं उसके लिए माफ करने वाला हूं, बेशुमारी मगफिरत है मेरी। तौबा कर, ईमान ला, नेक अमल कर, सुम्मा इहतदा, सीधा हो जा। सीधा होना, सीधे रास्ते पे चलना, ये तौबा के लिए जरूरी है। कहने लगा चला, अभी बेचारा चला ही था, आधा रास्ता आया, मौत का फरिश्ता आया, ले शैतान पहुंच गया। कहने लगा ये मेरा है, इसने कभी मेरी नाफरमानी नहीं की, इसकी जिंदगी मेरे मुताबिक हुई। रहमत के फरिश्ते आ गए, ये तौबा वाला है, हम लेके जाएंगे। हदीस में आता है कि उसको नेकी से ऐसी दिलचस्पी थी कि गिरते गिरते भी, मरते मरते भी घिसट के किस तरफ हुआ? अपने सीने के बल रींगते बिना उनके करीब हुआ। नेकी से इतनी कुर्बत हुई कि गिर गया, गिरते गिरते भी उसकी ख्वाहिश थी मैं नेकों के करीब हो जाऊं। अल्लाह ताला ने कहा जमीन नापो, हदीस में आता अल्लाह ने जमीन को सुकेड़ दिया, उसको नेकों के करीब कर दिया, बुरों से दूर कर दिया। यह भी कि वो गिरता गिरता एक बालिश्त करीब हो गया नेकों के। अल्लाह ने कहा जमीन की पैमाइश करो, वो करीब था नेक लोगों के। अल्लाह ने कहा जन्नत दो। 100 का कातिल था, 100 का कातिल था। कहा लोगों, कसम खा के मेरे नबी ने कहा है इब्ने आदम, हदीस कुदसी है कि अगर तू गुनाह करना खत्म कर दे, हम तुम्हें खत्म कर देंगे। एक नई कौम लाएंगे जो गुनाह भी करेगी, तौबा भी करेगी। आदम के सारे बेटे खताकार हैं, और बेहतरीन खताकार कौन है? खताकार को भी बेहतरीन कहा जो तौबा करे। तो इंशाअल्लाह इस रमजान में कोई जिंदगी की पॉलिसी बनाएंगे। पिछले अल्लाह माफ कर देगा, आइंदा हमने नहीं करने। 5 वक्त की नमाज, अपनी चीजें ठीक करनी, अपने घर के माहौल को ठीक करना, और अपनी नमाजों को ठीक करना, अपने अकीदे को ठीक करना। सारी तौबा, सारी नमाजें बेकार हो जाएंगी अगर अकीदा खराब हुआ। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह कहता हम हर चीज बख्श देंगे मगर तेरे शिर्क को हम नहीं बख्शेंगे। शिर्क अगर तेरे अकीदे में हुआ, तेरी दुआ किसी और से हो गई, तेरी गर्दन कहीं और झुक गई, तूने किसी और से मांग लिया,
तूने किसी के नाम पे दूध दे दिया, किसी के नाम पे रोटी खिला दी, किसी के नाम पे फल बांट दिए, किसी से बेटा मांग लिया, किसी से रिस्क मांग लिया, किसी से मदद मांग ली, किसी को मुश्किल कुशा कह दिया। हम तेरे नहीं है, फिर हम तेरे नहीं है, तेरी मेरी तौबा का कोई ताल्लुक नहीं, ना तेरे सजदे चाहिए, ना तेरी नमाजें चाहिए, ना तेरा कुछ चाहिए। तू मुश्किल कुशा भी मुझे कहेगा, मददगार भी मुझे कहेगा, इबादत भी मेरी करेगा, झुकेगा भी मेरे सामने, पुकारेगा भी मुझे, कुर्बानी भी मेरे लिए होगी, जानवर भी मेरे नाम पे ज़िबा होंगे, सजदे भी मुझे होंगे। तू किसी के पास नहीं जाएगा, तवाफ भी मेरे घर का होगा, किसी और कब्र का तवाफ भी नहीं करेगा, किसी के सामने झुकेगा नहीं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। तू तौबा करना चाहता है, पहले अकीदा ठीक कर। तू नमाज पढ़ना चाहता, पहले अकीदा ठीक कर। अगर तेरी तौहीद ठीक हुई, तेरे सारे अमल ठीक करेंगे। तू तौहीद में 2 नंबर हो गया, तू शिर्क की मिलावट ले आया, तू पहाड़ों के बराबर भी नेकियां ले आएगा। अल्लाह कहता हमें परवाह भी नहीं। तो अपने बच्चों के और अपने अकीदे पे बहुत मेहनत करनी इंशाअल्लाह, और ये जो 4-5 दिन है इसको जाया नहीं करना। एहसास है, मौजूद है माशाअल्लाह। यहां जुमा हो रहा है हमारे कादसिया में, मुल्क की सारी मसाजिद में हो रहा है। मस्जिद अक्सा भी जुमे से खाली नहीं है। लोग कहते हैं मस्जिद अक्सा आजाद कराएंगे, मैं कहते पहले अपने आप को करा दो, आजाद ही है। गोलियां बरसती हैं, खून बहता है, शेलिंग होती है, खारदार तारे हैं, मगर क्या अल्लाह के बंदे हैं। सब चीजों को अबूर करके मैंने उनकी वो तस्वीरें और वीडियोस भी देखी, सीढ़ियां लगा के मस्जिद अक्सा में पहुंचे हैं। शायद लाहौर की कोई मस्जिद हो जिसमें इतना रश हो जितना मस्जिद अक्सा में। आज की शाम की तस्वीरें गूगल कर लीजिएगा, उनसे पूछो क्यों आते हो, इतनी इतनी तकलीफ है। कहते हैं हमको यहाँ घरों के लिए रह रहे हैं, हम इस यरूशलेम में, हम इस फलस्तीन में, कोई इस वजह से बैठे हैं बैतुल मक़दस में, बैतुल हम्द में, रमला में, ईस्ट में, वेस्ट में। हम इसलिए थोड़ी बैठे हैं गजा में, इस ट्रिप में हम इसलिए थोड़ी रहते हैं कि हमें घर यहां मिले। हम तो इस क़िबला अव्वल की आबादकारी के लिए बैठे कि हय्या अला सलाह, अशहदु अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा आती है। इस आवाज के लिए, इस अल्लाहु अकबर के लिए हम 21 लाख गजा के क्या, चंद लाख फलस्तीन के क्या, हम सारे भी कुर्बान हो जाएंगे। इस बैतुल मक़दस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। वो कौम है, मैं कसम से देखता हूं। कल वीडियो मैंने देखी, मैं तो सारी देख भी नहीं सकता। बाप के पांव कटे, जख्मी पड़ा है हॉस्पिटल में, मां 5 साल की बेटी की मैयत उसको दिखा रही है, खुद हिला नहीं जाता, जख्मों से चूर है, और 5 साल की बेटी है। और कहते क्या, कुल बिहम्दिल्लाह, हस्बी अल्लाह, इन्ना माय रब्बी सयहदीन, इन्नल्लाह माअना। ऐसे तवक्कल के लोग हैं, ऐसे तवक्कल के लोग हैं कि लाशें उठा के भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे तो चारपाइयों को कंधे नहीं देते। मैंने तस्वीर उस दिन देखी, 15 साल के बच्चे की मैयत बाप कंधे पे उठा के लेके जा रहा है, कहता राशन लेने के लिए आया था, बमबारी हुई है, बेटा शहीद हो गया, राशन नहीं मिला, बेटे को घर वापस ले जा रहे। घर क्या है, खेमे भी नहीं। 15 लाख लोग 21 लाख में से खुले आसमान तले बैठे, पीने का पानी नहीं है। मैंने घास खाते देखे लोग, 1 रोटी 5 लोग तकसीम करते खाते देखें तस्वीरें। शदीद सर्दी में ठिठरते देखें, और इस सब में भी कहते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें फतह देगा। आज भी 90% से ज्यादा गज़ा मुजाहिदीन के पास है। आज भी फतह का मुकद्दर इस्लाम है इंशाअल्लाह ताला। इसराइल को शिकस्त होगी, यहूदी मिटेंगे, इस्लाम के परचम लहराएंगे, कुफर के परचम सरनगू होंगे, तौहीद का नूर छाएगा, कुफर के अंधेरे छट जाएंगे। ये अल्लाह का फैसला है, ये अल्लाह का वादा है। रमजान फतह के दिन है। रमजान में मक्का फतह हुआ था, रमजान में बदर की फतह थी, रमजान में अबू जहल कटा था, रमजान में बर्रे सगीर में इब्ने कासिम आए थे, रमजान में अल्लाह ने पाकिस्तान दिया था। इंशाअल्लाह ये रमजान भी रोशनी का रमजान होगा, उम्मीद का रमजान होगा, फतह का रमजान होगा, उम्मत मुस्तहकम होगी। ये वक्ती से मसले अल्लाह मुल्क के भी हल करेगा, उम्मत के भी हल करेगा। हम सबको एक होना है, इकट्ठे होना है, अल्लाह के बंदे बनना है, तौबा करनी है, अपनी जिंदगी संवारनी सुधारनी है, अल्लाह के साथ अपने मामला दुरुस्त करने हैं, अल्लाह के बंदों के साथ अपने मामला दुरुस्त करने हैं। खयानत नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, हराम नहीं खाना, जुल्म नहीं करना, अल्लाह के सच्चे बंदे बन के जीना है। अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ करके हमें जन्नत में दाखिल कर दे, अल्लाह ताला हमें जहन्नुम से बचा ले, अल्लाह ताला हमें पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा ले। जिंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत दे तो शहादत की। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, वमा अलैना इल्लल बलाग। काफिर जुदा जुदा हैं,
और वो अपने कुफर के लिए एक हो गए, और हम एक हैं और मुल्कों और कौमों के नाम पे जुदा जुदा हो गए। बड़ी ज्यादती है। हम कश्मीर के साथ हैं। जो जेलों में इस वक्त ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम उनको कभी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारा उनका ताल्लुक ईमान अकीदे का है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह नारा नहीं है, ये ईमान है। फलस्तीनियों से अगर हम कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा नहीं है, ये अकीदा है, ये दुनिया नहीं, आखिरत है। इंशाअल्लाह हम उनके साथ हैं, हर तरह साथ हैं, जान भी देंगे, माल भी देंगे, हर कुर्बानी देंगे। इंशाअल्लाह कश्मीर भी आजाद होगा, फलस्तीन को भी अल्लाह ताला मजबूत करेगा, इसराइल भी शिकस्त खाएगा, हिंदुस्तान भी बिखर जाएगा इंशाअल्लाह। लोग कहते हैं नहीं होगा, मैंने कहा तेरे कहने से नहीं होगा, मैं रब से दुआ करता हूं। हमारा तवक्कल अपने रब पे, इंशाअल्लाह ताला मुजाहिदीन को अल्लाह ताला फतह देगा। हमने जिहाद को जारी रखना है, किसी कीमत पे हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। ये जिहाद कौमों की जरूरत नहीं है, ये कुरान का फैसला है, ये नबी की जिंदगी है, ये रमजान का पैगाम है। इंशाअल्लाह हमारी दुआएं, हमारी आरजुएं, हमारी इल्तिजाएं अपने रब से हैं कि वो मुसलमानों को गलबा अता फरमाए और हमें इस गलबे की तहरीक में शामिल करेंगे। तो इंशाअल्लाह हर सूरत उनकी मदद करेंगे। अल्लाह ताला पहुंचा रहा है, पहुंचेगा इंशाअल्लाह ताला। फितराना ईद से पहले अदा करना है। क्यों है? जो गलतियां, लग हरकतें बंदे से रमजान में कोताहियां हो जाती रोजे में, ये उसका कफारा है, और इसमें तेरे भाई के लिए खाना है। कल्ला ईद दिन दिन रोटी ना खाई, उन्हें भी खिलानी है। तेरे घर में तो खीर पके, गोश्त पके, सवैयां पके, केक आए, मिठाइयां आए, और गज्जा के घर में फाका हो, ये नहीं चलेगा। कश्मीर की जेल में ईद के दिन वो खाना खाएं या मार खाएं, अल्लाह कहता है तूने उनका साथ देना है। तो इंशाअल्लाह हम उनके साथ हैं। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुर जिहादुल मुजाहिदीन, अल्लाहुम्मा अंसुर मुजाहिदीन।